Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Gemini Ascendant and the predictions for the month of July 23. We will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mercury is going to be in the Ascendant till 7th of July, and then it is going to shift into the second house where it is going to remain till 24th of July. Now the Ascendant Lord in the second house is a very good position for the financial flow, and the best time from the cash flow perspective will be the time when Mercury shifts into the second house. So if we talk about the dates, 8th and 9th of July followed by 10th of July will be the best time from the finance point of view. Overall money flow will continue for you till the time Mercury is sitting here. So the time frame from 8th of July to 24th of July anyways is very conducive as far as the cash flows are concerned. Let us also look at the other planets one by one. Mars is going to occupy its friend sign Leo from 1st of July to 17th of August. Mars is the owner of both the 6th house as well as 11th house for your ascendant, and its placement in the 3rd house would mean that people who are in the field of telecommunications, marketing, publishing, writing, as well as brokerage related professions will see a gain in this 1.5 months time frame. People who are looking to excel in their jobs, the best time is at the beginning of the month from 1st to 3rd of July, and then again on 23rd and 24th of July. Venus is the lord of the 5th house that shows speculation, as well as the 12th house that shows investment. So if you're related to the field of speculation or stock market, then this month is going to be very favorable for you, especially the time frame of 21st to 26th of July is going to be extremely favorable. Venus is also going to combine with Mars, which rules the 11th house of gains. So this week will give you very strong result, and if you are a seasoned speculator, then you should look forward to hefty gains in the time frame of 21st to 26th of July. Now, if you happen to be a student, then the best dates to clear the competitive exams would be on 13th and 14th of July, and then again on 21st and 22nd of July. All those people who want to get married will also have a very strong probability of getting hitched, because Jupiter is going to aspect its own house, which is the seventh house, through the ninth aspect, and this aspect is going to continue till April 2024. So depending on what kind of an MD or AD an individual is going through, they will have a very strong probability of getting married in the next 1 year time frame, because Jupiter in transit is opening the doors for them to get hitched within the next 1 year. Now, during the middle of July till the 16th of July, Sun is going to occupy your first house, and it is going to give a huge boost to your ego. And it will be very good if you can avoid any ego clashes, especially with your spouse in the first half of July. If you want to build rapport with your spouse, then 17th and 18th of July would be the best time to spend time with them. Gemini ascendant people usually get pushed back in their lives because their enemies secretly plot against them and bring their downfall. This is because the sixth house, which is also the house of enemies, has Scorpion as the sign, and Scorpion itself indicates mysteries and everything that is hidden. And that is why I always advise the Gemini ascendant people not to make enemies, because they remain hidden, they collude together and they pull the Gemini ascendant individual down in their lives, and that is why they need to be very friendly with people. Now, there are also certain dates where you need to be very careful, and you should avoid any arguments, look after your health, and you should postpone any key decisions. So, these 6 days in the month of July for you are 5th and 6th of July, 15th and 16th of July, and 19th and 20th of July. Just be careful during these 6 days. If you look overall, this month is pretty good from the financial perspective, and all those who want to earn an extra buck will find this month to be very favorable for them. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मिथुन लग्न के लोगों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसे निकलेगा। अगर हम सबसे पहले लग्नेश पे नज़र डालें तो लग्नेश बुध 7 जुलाई तक प्रथम भाव में ही बैठे रहेंगे। तो लग्नेश का लग्न में बैठना
काफ़ी अच्छा कहलाता है। इसके बाद 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ये द्वितीय भाव में रहेंगे, और लग्नेश का द्वितीय भाव में रहना फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा कहलाता है, मनी इनफ्लो को दिखाता है। और जैसे ही बुध द्वितीय भाव में एंट्री करेंगे, यानी कि 8 से लेकर 10 जुलाई तक का समय आपके लिए कैश फ्लो के हिसाब से सबसे बेहतरीन कहलाएगा। अगर आप कुल मिला के भी देखेंगे तो 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का समय में आपको टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आता हुआ दिखेगा, क्योंकि लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना अपने आप में ही बहुत अच्छा धनकारक योग कहलाता है, और गोचर में भी आपको आपके परिणाम देगा, खास करके अगर आपको बुध की महादशा चल रही हो तो। एक नज़र बाकी के ग्रहों पर भी डालते हैं। मंगल आपके तृतीय भाव में अपनी मित्र राशि सिंह में बैठे रहेंगे 1 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक के बीच में। मंगल छठवें भाव के भी स्वामी हैं, जिससे आप रोजगार देखते हैं, और 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जिससे आप लाभ देखते हैं। तो इन दोनों स्थानों के मालिक का तृतीय भाव में बैठना ये कहलाता है कि अगर आप टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड लाइन में हैं, मार्केटिंग, पब्लिशिंग, राइटिंग, या फिर कोई भी ब्रोकरेज रिलेटेड बिजनेस, कोई भी कमीशन जिसमें मिलता है, अगर इन सारे रोजगारों से आपका संबंध है, तो 1.5 महीने का समय जब तक मंगल यहाँ बैठा हुआ है 1 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक का, तब तक आपके लिए ये कॉम्बिनेशन पैसे का काफ़ी बरसात की तरह ला सकता है। अगर आप नौकरी में जुलाई के महीने में आगे बढ़ना चाहते हैं या नया नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो महीने की शुरुआत में यानी 1 से 3 जुलाई तक का समय, और उसके बाद 23 और 24 जुलाई का समय आपके लिए नौकरी बदलने के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जिससे कि आप शेयर बाजार या सट्टे को देखते हैं, और 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, जिससे कि आप बड़े इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। तो अगर आप स्पेक्यूलेशन या स्टॉक मार्केट की फील्ड से संबंध रखते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके 21 से लेकर 26 जुलाई तक का समय ऐसा रहेगा जब आपके लिए शेयर बाजार में काफ़ी फायदा साबित हो सकता है। अगर अगर आप प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर्स हैं, आपको इस काम की अच्छी समझ है, तो फिर यह समय आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। शुक्र यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ कंबाइन करेंगे तृतीय भाव में, और इसीलिए 21 से 26 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने की जो तारीखें हैं सबसे अच्छी वो है 13 और 14 जुलाई, और उसके बाद 21 और 22 जुलाई। इन 4 दिनों में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरते हैं तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा जितने भी लोग अभी सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु जैसे ही आपके 11वें भाव में आ गया है अप्रैल से, और अगले 1 साल तक अप्रैल 2024 तक वो यहीं बैठेगा और अपनी नवी दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, जो कि उसका स्वयं का स्थान है। तो यहाँ पे बैठ के ये गोचर में आपके लिए शादी करने के दरवाजे खोल रहा है। अब आपके महादशा और अंतरदशा के अनुसार ये डिसाइड होगा कि आप शादी के बंधन में बन सकते हैं या नहीं, लेकिन गोचर में तो गुरु आपको हरी झंडी दिखाई रहा है। इसके अलावा जुलाई के महीने में 16 जुलाई तक सूर्य आपके प्रथम भाव में बैठ के आपके अहम को जगाएगा, आपकी ईगो को बूस्ट करेगा। तो इस समय में आप अपने परिवार वालों के साथ, खास करके अपने पति या पत्नी के साथ ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स में आना बंद करें। अपने जो अहम है उसको कोने में करके रखिए, नहीं तो फिर यह आपके लिए समय अच्छा नहीं गुजरेगा। अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ समय बिताना चाहते हैं तो 17-18 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितने भी मिथुन लग्न के लोग होते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि दुश्मनों को बनाना बंद कीजिए और मित्र बनाइए, क्योंकि दुश्मन मिथुन लग्न के लोगों को नीचे गिराने का काम करते हैं। क्योंकि छठवें भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, और वृश्चिक यानी कि कोई भी चीज़ जो छुपी हुई रहती है, सतह पे नहीं होती, दबी होना, जिसको आप भांप नहीं सकते हैं। तो अगर आप शत्रुता करते हैं लोगों के साथ, तो ये शत्रु आपस में हाथ मिला के मिथुन लगने के लोगों को नीचे खींच देते हैं। और कई जगहों पे हम देखेंगे कि लोग जो बहुत अच्छी पोजीशंस में रहते हैं उनका डाउनफॉल भी इसीलिए होता है, क्योंकि उनके शत्रु मिलके उनको पराजित कर देते हैं। और इसीलिए मिथुन लगने के लोगों को हमेशा लोगों से मित्रता बना के रखनी चाहिए। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए। इन दिनों में आपको किसी के भी साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जुलाई के महीने में जिनमें दिनों में आपको सावधान रहना है वो दिन है 5 और 6 जुलाई, 15 और 16 जुलाई, और 19 और 20 जुलाई। इन 6 दिनों में आप सावधानी बरतिए। अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो ये महीना आपके लिए
पैसे की काफ़ी आवक लेकर आएगा, क्योंकि बुध का 8 से 24 जुलाई तक यानी ऑलमोस्ट आधे महीने तक धन के स्थान में बैठना आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से बहुत अच्छा कहला सकता है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।